So let us start with an invocation. Take a deep breath in. Asato Satgamaya Tapaso Ma Jyotirgamaya Nityorma Amritam Amayo Om Shanti Shanti Shanti. So today we are on the 10th chapter, 10th session of Yog Vashish, and we are doing story 12, which is Indrajal ka Upakhyan. Upakhyan matlab story. And these stories have a heavenly meaning or a spiritual meaning attached to them. In fact, it is pure Gyan in the form of stories. That's all it is, So Vashisht tells Ram. Now, before I actually start onto the story, I'm going to tell you a little bit of the Gyan which Vashisht is interspersing the stories with. Before the story, he gives some pearls of wisdom which are to be imbibed by Rama. And Rama is a very, very apt sadhak who just gets it very fast. So, Neena ji, would you like to open your video? I'm just basically, little on the bed. I have to open. Yeah. Okay, don't worry then. Then don't. Yeah. I'm listening to you. Okay, great. So, Vashisht is telling Ram about mind. What is mind? Mind is only perception. Perception is a movement in consciousness. That means mind is a movement in consciousness. Then third point, would you like to write down, Roxana? Mind is only perception. Perception is a movement in consciousness. आपकी एकदम स्टिल कॉन्शियसनेस है, आपने कुछ परसीव करा, कुछ वाइब्रेशंस उस कॉन्शियस तत्व में उठी. माइंड थिंक्स एंड ऑर्गन्स ऑफ एक्शन स्ट्राइव टू फुलफिल द थॉट. जो कुछ भी थॉट आपके माइंड में आया, वो द ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन एंड द कर्म इंद्रियास, द ज्ञान इंद्रियास एज वेल एज द कर्म इंद्रियास, they move, they strive to fulfill that thought which has arisen in the mind. Hence, mind is action. Thus, mind gets divided into many facets. But the infinite consciousness is the sole reality in all the concepts. Without that infinite consciousness, we cannot have any thoughts arising or any action happening. So, everything boils down to consciousness. Number 5, when ignorance covers consciousness, ignorance of who we are, when ignorance covers consciousness, then the same consciousness comes into agitation, and it then is called mind or mind stuff. कई बार स्पिरिचुअल बुक्स में एक टर्मिनोलॉजी आती है विच इज कॉल्ड माइंड स्टफ. तो माइंड वो हलचल में आई हुई कॉन्शियसनेस है which is in turmoil, which is not able to decide what course of action to take. That is typical of the mind. So it is also called mind stuff. The 6th point. It then foolishly identifies itself as a separate person, and this
is called egotism. So, egotism is also part of the consciousness. Its substratum or foundation is the self-same consciousness. Number 7, it becomes an independent doer and pursues the fruits of action, known as karma. It becomes the agent of the karma. It gets the feeling of doership. When it says, I have seen this before, the same mind is called memory. When it says, I have seen this before, the same mind is called memory. For the benefit of all of those who have joined a bit late, we are discussing the various facets of the mind, and that this mind, as its substratum, as its foundation, has the self-same consciousness at the back of it, supporting it for everything that the mind does. Okay? The 9th point. When effects of past enjoyments, when effects of past enjoyments continue, it is called latent tendency. हिंदी में शब्द है वृत्ति. When effects of past enjoyment remain in the mind, it is called latent tendency or vritti. When it is conscious of truth, अब यही mind can become conscious of the truth. When it is conscious of the truth and realizes that the division is due to ignorance, it is called knowledge or ज्ञान. तो ज्ञान में भी ये self same mind can come into knowledge. 11th point. When it moves in the wrong direction, it is called impurity. 12. When it entertains the indweller with sensations, it is called indriya, the indweller within me. When it allows itself to go in sensations of the sense organs, it is called indriya. 13. When it remains unmanifest, it is called nature or prakriti. When, 14 number, when it creates confusion, illusion, it is called maya, the same mind. 15. When it dissolves in the infinite, there is liberation. मुक्त हो जाता है. 16. When it thinks, I am bound, there is bondage. अपने thought के ऊपर depend करता है, अपनी understanding, अपनी knowledge उसके ऊपर depend करता है, मुक्ति है या बंधन. And 17, at the last point, when it thinks I am free, there is freedom. ठीक है? तो ये कौन बता रहा है? ये मैं नहीं आप लोग को बता रही, ये वशिष्ठ राम को बता रहे. तो उपाख्यानों के बीच बीच में वो इस तरह के ज्ञान के पॉइंट्स काफी लिबरली कह देते थे, क्योंकि उनके सामने एक सुपात्र था इन द नेम ऑफ रामा. राम के रूप में उनके सामने एक ऐसा साधक बैठा हुआ था जिसको जो कुछ भी वो परोसते थे वो सब उसको आत्मसात कर पाते थे, क्योंकि ऑलरेडी उनके अंदर इतना बड़ा वैराग्य मन को घेरे बैठा हुआ था. संसार से वो ऑलरेडी छूटे पड़े थे, इसलिए वो मोक्ष के
सुपात्र बन गए थे, वो एक मुमुक्षु थे, और ज्ञान की एवरी बिट ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग ज्ञान ही वुड गजल इट इन, जैसे कोई गटगट गटगट पी जाए, ऐसे थे राम एज अ साधक। अब आज की स्टोरी का नाम है इंद्रजाल। Amla ji, please, sorry to interrupt you. I want to ask you a question. We have reached in Yog Vashisht a place where Vashisht tells Ram that the consciousness doesn't do anything, but it has a minister. You know, he's trying to explain. Yes. So that minister would be the mind, or would you call it the Brahma who has created this world? Because this is what Rama asks him, you know, about the creation. So he says consciousness does nothing. So there is a Consciousness minister. मतलब ब्रह्म तत्व कुछ भी नहीं करता है. It is like the Raja. And Yeah. the mind is the minister. I also thought so. Yes. Mind is the minister who controls Yes. all the senses and who directs. And the mind has got hypnotized by the thought that I am part of this body-mind mechanism. So the mind has become identified with the person. Right. And all the ignorance वो इसके ऊपर हावी हो जाती है और हम पूरे डिल्यूजन में आ जाते हैं, माया के चक्कर में हम लोग पड़ जाते हैं. Because you mentioned so many facets of the mind, so I said definitely this is the minister then. This is the minister. Yes. Thank you. मन ही देखिए, मन ही वो तत्व है जो एक ह्यूमन बीइंग के अंदर बहुत ज्यादा डेवलप्ड है. इसलिए मन उस ब्रह्म तत्व के रिफ्लेक्शन को बहुत अच्छी तरह से पकड़ लेता है. तो जब ये मन उस रिफ्लेक्शन को पकड़ लेता है तो इसका भी एक यूजफुलनेस हो जाता है. मालूम है क्या? ये इसके अंदर से भी रोशनी रिफ्लेक्ट होती है और हम लोग इस जगत के सारे काम उस रिफ्लेक्टेड रोशनी से कर रहे हैं. जो रिफ्लेक्टेड रोशनी मन ने पकड़ ली है, जैसे कि कभी कभी जैसे सूरज की रोशनी कोई मिरर के ऊपर पड़ती है, तो वो जो मिरर में से जो रिफ्लेक्ट होता है वो भी तो रोशनी देता है ना. तो वो हो गया चिदाभास, राइट? चिदाभास. वो है चिदाभास. यस, वो है चिदाभास. क्योंकि मन इतना खूबसूरत एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि और कोई भी योनि में पाया नहीं जा सकता सिवाय कि मनुष्य योनि में. तो वो बहुत कुछ अपने अंदर कैच करके और उसको रिफ्लेक्ट करना शुरू करता है और इस फंक्शनल प्लेन की सारी एक्टिविटीज हम लोग उस रिफ्लेक्टेड लाइट में करते हैं. और ये जो जड़ है ह्यूमन बॉडी, ये भी उस रिफ्लेक्टेड लाइट से चैतन्य फील करने लगती है. तो ये चैतन्य हिलता है, डुलता है, मूव करता है. लेकिन वो ब्रह्म तत्व जो कि प्योर लाइट है वो केवल इल्यूजन करता है. वो खुद खुद कुछ भी करना नहीं चाहता क्योंकि वो टोटली अपने आप में तृप्त है. समझ गया? तो अब ये स्टोरी है इंद्रजाल की स्टोरी. यह योग वशिष्ठ के सर्वश्रेष्ठ उपाख्यानों में से एक है. यह दर्शाता है कि मन एक पल में बड़ी से बड़ी घटनाएं पैदा कर सकता है जो युगों और कल्पों के दृश्य दिखा देती है और क्षण भर में उनको समेट लेता है. और एग्जैक्टली यही बात आपको आज अष्टावक्र में सुनने को मिलेगी और मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे आप मन की ये प्रॉपर्टी को समझ करके इससे बड़ा से बड़ा ज्ञान हासिल कर सकते हैं. और ये जनक ने कैसे अपने साथ किया और वो 20 श्लोक सुनकर कहां से कहां पहुंच गया. तो हम लोगों ने अब तक 550 श्लोक तो ब्रह्म सूत्रों के कर लिए है ना.
और 65 श्लोक कर लिए आत्मबोध के, और 20 श्लोक और आज का लेकर के हम लोग आज हम लोग 16 तक करेंगे, तो 11 तक 10 तक हम लोगों ने करे। 30 श्लोक हम लोगों ने अष्टावक्र गीता के लिए कर लिए, है कि नहीं? 12 श्लोक हम लोगों ने मांडुक्य उपनिषद के कर लिए, तो हम लोगों ने तो 700 श्लोक करीब कर लिए। और हम लोग के अंदर वो परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा? इसलिए मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूं प्रभु। तो इस होमवर्क से कतराइए मत। इस होमवर्क के जरिए आप लोग 24 घंटा इस ज्ञान के स्मृति में स्मरण करते हुए रह सकते, ठीक है? तो एक बार धरती पर उत्तर पांडव नामक एक देश था। उत्तर पांडव, उस पर एक धर्मात्मा और शूरवीर राजा राज्य करता था। एक दिन जब वह अपने दरबार में बैठा हुआ था, तो वहां एक जादूगर आया और उसने अपने पिटारे में से एक मोर के पंखों का गुच्छ निकाला। उसने वह मोर पंख का गुच्छा राजा के पास घुमाना शुरू कर दिया। जैसे कोई हिप्नोटिस्ट होता है, वो एक पेंडुलम ऐसे ऐसे करके हिलाता है कि नहीं आपकी आंख के सामने, तो आप उसके बस में हो जाते हैं। तो इसने ये मोर पंख का गुच्छा राजा के पास घुमाना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में राजा को नींद सी आ गई, या यूं कहिए कि वह फेंट, मूर्छित हो गया। दरबारी जादूगर को बहुत बुरा भला कहने लगे, भाई हमारे राजा को तुमने बेहोश कर दिया, क्या तुम कर रहे हो? जागने पर राजा ने सब लोगों को वह कह सुनाया जो इस मूर्छा की 2 घड़ी में उसने अनुभव किया था। एक घड़ी 24 मिनट की होती है, 2 घड़ी का मतलब 48 मिनट। ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन मैंने गूगल से निकाली। समझ ही नहीं पा रही थी कि आप लोग को 2 घड़ी के बारे में क्या बोलूं, 2 मिनट तो नहीं बोल सकती। तो 48 मिनट की 2 घड़ी होती है, 24 मिनट की 1 घड़ी। ठीक है, जैसे कोई हिप्नोटिस्ट एक पेंडुलम सा अपने पात्र की आंखों के सामने घुमाता है, वैसे ही जादूगर ने किया, जिसकी वजह से राजा गहरी तंद्रा में चला गया और उसे अपनी वर्तमान अवस्था भूल गई और उसने खुद को इस विचित्र जगह में पाया। वो जो फेंट सा हो गया था, गहरी नींद में चला गया था, he was removed to another plane of consciousness। उसने देखा कि एक दूसरे राजा का दूत एक बहुत तेज और सुंदर घोड़ा लिए उसके सामने आया। That means another king had sent a horse to this king, जो कि एक जो शूरवीर धर्मात्मा राजा उत्तर पांडव नामक का उसमें रहता था, राज्य करता था। उसके पास में एक दूत आया, एक सुंदर घोड़ा लेकर के। दूत ने कहा कि उसके स्वामी ने यह घोड़ा उनके लिए भेंट स्वरूप भेजा है। एज अ प्रेजेंट ही हैज सेंट दिस घोड़ा। राजा बहुत खुश हुआ और घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। घोड़ा बहुत तेज था, राजा को लेकर वह भाग खड़ा हुआ और रोके न रुका। राजा बैठे बैठे तंग आ गया, क्योंकि वह घोड़ा उन्हें राज्य से बहुत दूर दक्षिण दिशा में ले गया और वहां पहुंचने के बाद विंध्याचल के जंगलों में जा पहुंचा। तब राजा को एक आइडिया आया। वो घोड़ा ना 1 सेकंड को रुक ही नहीं रहा था, कितनी भी वो लगाम खींचे, कुछ भी करे। तो राजा को एक आइडिया आया। उन्होंने घोड़े पर बैठे बैठे एक पेड़ की डाली पकड़ ली और उस पर लटक गया। घोड़ा आगे बढ़ गया। इस प्रकार घोड़े से छुटकारा मिल गया। अब पेड़ से उतरकर विश्राम करने जो बैठे, तो उन्हें बहुत भीषण भूख और प्यास महसूस हुई। ये राजा जब इतनी देर तक वो घोड़ा उनको लेकर के सरपट भाग रहा था कि एट द एंड ऑफ दिस हॉर्स राइड ही वाज लेफ्ट वेरी वेरी
emaciated and depleted and wanted some nourishment. तो उन्हें बहुत भीषण भूख और प्यास महसूस हुई, जैसे बिना उसके उनके प्राण ही निकल जाएंगे। इधर देखा, कहीं भी खाने या पानी की व्यवस्था की संभावना नजर ही नहीं आ रही थी। वे जीवन से निराश होने लगे थे कि इतने में उन्हें एक काली कलूटी बदसूरत चांडाल लड़की दिखाई दी, जिसके एक हाथ में जामुन का रस का पात्र था और दूसरे में पके हुए चावल का बर्तन था। ठीक है, जामुन का रस और चावल। आई थॉट द कॉम्बिनेशन वाज प्रीटी गुड। वह मस्तानी चाल से चल रही थी। राजा के मन में आशा की एक किरण थी और उन्होंने उससे खाना देने के लिए प्रार्थना की। लड़की ने कहा कि यह खाना वह अपने पिता के लिए ले जा रही। बहुत अनुनय विनय के पश्चात भी उसने कुछ भी नहीं दिया। राजा के बहुत कहने पर वह बोली, अगर तुम मेरा पति बनना स्वीकार करो तो मैं इस खाने का कुछ हिस्सा तुम्हें दे दूंगी। She was a sharp one, huh? She really फसाओ the राजा। मरता क्या न करता। राजा तैयार हो गया। लड़की ने थोड़ा खाना राजा को खिला दिया। फिर दोनों चांडाल के पास जाकर के पहुंच गए, जो उस कन्या से भी ज्यादा कुरूप था। They were that type of people, you know, who are really ugly to behold. कन्या ने पिता को बताया कि उसने इस सुंदर पुरुष को अपना पति बना लिया है। पिता बहुत खुश हुए और उसे आशीर्वाद देते हुए बोले कि इसे घर में ले जाओ और आराम से अपना जीवन बिताओ। Take him home and live your life happily ever after. लड़की उसे अपनी झोपड़ी में लेकर के गई। राजा ने देखा चारों तरफ कुत्ते, गधे, भैंसों की खालें पड़ी हुई हैं, खून, मांस आदि बिखरा पड़ा है। चारों तरफ दुर्गंध और गंदगी फैली हुई है। वहीं बीच में बैठी उसकी सास, लड़की की माँ, मांस पका रही है। वह मांस माँ ने खुश होकर अपने जवाई को परोसा। कोई भी घर में गेस्ट आता है तो जो खाना बना हुआ है और जिसको वो बेहतरीन समझते हैं वो उनको परोसते हैं ना गेस्ट को, और खास करके जवाई। तो और उन लोगों ने फिर उन लोगों ने सारी बिरादरी को बुलाकर धूमधाम से मांस आदि की दावत का आयोजित करी और अपनी कन्या का विवाह कबीले के सामाजिक नियमों के अनुसार संपन्न किया। रॉक्साना, यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग? Yes, yes. Thank कुछ ही दिनों में यह प्रतापी राजा एक जाना माना चांडाल बन गया और उसके 3 पुत्र और 3 कन्याएं भी हो गईं। पर समय का चक्र ऐसा चला कि वहां पर वर्षा न हुई और भीषण अकाल पड़ गया। खाने के लाले पड़ गए, लोग भूख से मरने लगे। राजा अपनी स्त्री और बच्चों को लेकर दूसरे देश के लिए निकल पड़ा और कि कहीं तो भोजन की व्यवस्था हो सके। रास्ते में भोजन के बिना चलते जाना भी इम्पॉसिबल हो गया। वे लोग एक पेड़ के नीचे सुस्ताने को बैठे। राजा के सबसे छोटे लड़के ने कहा कि भूख के कारण वह मरने वाला हो गया है। राजा ने उसकी भूख मिटाने के लिए खुद का बलिदान देने की सोची। एक नजदीक पड़ी हुई लकड़ी के ढेर में आग लगाकर वह खुद उस पर बैठ गया और अपने पुत्र से कहा कि वह उसका मांस खाकर अपनी भूख मिटा सकता है। जैसे ही वह आग के ऊपर बैठा कि उसकी चेतना दूसरे प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस में पहुंच गई, मतलब अपने राज दरबार में पहुंच गई। जलने के कष्ट ने उसकी निद्रा खोल दी और उसने अपने को सिंहासन पर बैठा हुआ पाया। जादूगर पास ही बैठा था और दरबारी सब चिंता से भरे हुए मुंह लटकाए चारों तरफ खड़े हुए।
राजा को यह सब दृश्य केवल 2 घड़ी के भीतर अनुभव हुआ था। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि उसने इतना सब अनुभव 48 मिनट में कर लिया है। राजा अपनी सेना को लेकर दक्षिण की तरफ निकल पड़ा कि भाई देखो तो सही, ये सचमुच इस तरह का कोई देश वहां पर है क्या। किरात देश में पहुंचकर हूबहू वे सब दृश्य देखे जहां पर राजा ने अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। फिर अपनी सास को शोक मनाते हुए देखकर उन्होंने उसको सांत्वना दी और कुछ मोहरें आदि दे दी, जो कि उनका जीवन अच्छी तरह से चल सके। Now, see, these kind of stories, now I cannot tell you to believe in them. I cannot tell you to disbelieve in them because they are written in the Shastra. So I am in a enigma. But I want to say something. My advice to you all will be that please take all this with a pinch of salt, because nobody can go through planes of existence like this except dream and then reality, then wakefulness. Then you go through a dream and then you come back to wakefulness. In our own lives, we have not seen this kind of transition from one plane of existence to another. Therefore, just know that chances are that you can manifest what you imagine, but that is not always the case. However, remain positive under all circumstances. Try to look at the brighter side of whatever is happening. Deal with life situations with common sense and don't take life too seriously. Because life में जो कुछ भी होता है ना, it is very much dream-like. So just like we can put away the dreams or whatever we have experienced in the dream, we don't pay too much of an attention on it. So also life situations, when they turn extra serious or full of misery for you, just don't take it too seriously. One day that too shall pass away. Nothing stays for permanent. Okay?